Hello and welcome to Employability Skill Series. In this video, we are going to start unit number 4, which is your entrepreneur skill. And this video is important for all the 10th standard students, and this is based on new syllabus for CBSE. So, in this lesson, only 4 sessions are there. Very small lesson is there. फर्स्ट इज योर एंटरप्रेन्योर एंड सोसाइटी, ठीक है. सेकंड इज योर क्वालिटीज एंड फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर. याद रखिए क्वालिटीज में देर आर 4 क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. फंक्शंस देर आर 6 फंक्शंस विच आर रिलेटेड विथ योर एंटरप्रेन्योरशिप. myths about your entrepreneurship, or we can say the misconceptions about your entrepreneurship and entrepreneurship as a career option. So let us start this chapter without wasting our time. So this is the page of your unit 4, and entrepreneurship is not just starting your business. It's about your innovation, it's about your problem solving, leadership, which are essential for success in any career. So this unit will help you to understand the key concept, develop an entrepreneurship mindset, and prepare you for real world challenges. Okay, so what we have to do, I'm going to explain it in very simple way. Simple explanations are given in your book, and real life examples are also given there. So without wasting time, now what is in this page, let us see. Okay, now the thing is, what is that entrepreneurship? ठीक है, तो it is your type of self employment. ठीक है, it is your type of self employment where one is running business to satisfy the need of people and looking for the ways to make your business better to make profit. Okay, so what is that entrepreneurship? We can say in simple words, that is your self employment. You are self employed and you are generating employment. ठीक है, तो दो चीजें होती हैं आपकी एंटरप्रेन्योरशिप में. एक तो आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एंड सेकेंड यू आर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट. ओके, नाउ in this page, okay, we also learned that successful entrepreneurs have following qualities. So in this page, what is their qualities of your entrepreneurship? ठीक है, qualities of your entrepreneur. So what are the qualities? The number 1 quality is your confident. ठीक है, the first thing is your confident. ठीक, the second thing is your keep trying new ideas. Keep trying new ideas. Number 1 is your confident. Number 2 is your keep trying new ideas. Number 3 is your patient. Patience is very important. ठीक है, we have to keep patience while starting any business. Then you are creative and think differently. ठीक है, the businessman, that entrepreneur should be your creative and should think differently. Okay, then take responsibility for their actions. ठीक है, he should be responsible, he or she should be responsible for their own actions. ठीक है, then they take decisions after thinking about that. ठीक है, taking decisions after data analysis, taking decisions after analyzing the things. ठीक है, they work hard and do not give up and face difficulty. ठीक है, when they face difficulty, do not give up. So these are the qualities of your entrepreneur. ठीक है, इस पेज में ये important है, qualities of your entrepreneur. ठीक, क्या क्या क्वालिटीज हैं, इसमें से आपको एटलीस्ट 4 क्वालिटीज याद रखना है. दैट इज योर कॉन्फिडेंट, कीप ट्राइंग न्यू आइडियाज, creative, think differently, taking responsibility, take decisions after thinking,
work hard, and never give up. So these are the qualities of your entrepreneurship. ठीक है, moving on to the next page. Now the section 1 is your entrepreneurship and society. ठीक है, means how entrepreneurship helps society. इसके questions आते हैं, how entrepreneurship helps your society या how entrepreneur helps your society. ठीक है, so okay, so there are different ways where entrepreneur helps your society, and the ways are your, we can say, by generating your employment. ठीक है, how entrepreneur help society. ठीक है, इनके बीच का रिलेशन क्या है? entrepreneur and society. ठीक है, so number 1 we can say employment generation, then your economic growth. देखो, employment generation also EG मैंने लिख दिया यहाँ, economic growth, then your innovation and technology. ठीक है, innovation and technology यूज करें हम. इसके बाद improvement in your standard of living. ठीक, standard of living. तो ऐसे there are few things how that entrepreneur plays significant role in shaping society. Here one example is given of your Ramya and Ramu. Both own plant shops. Ramu sits at the shop every day. When the customer comes, he sells to them. Ramya walk around and get customer to her shop. She also sells seeds and flowers with the plant. Ramya is working to do more and grow her business. She has also added a different idea to her business. So Ramya is an entrepreneur and Ramu is a businessman. ठीक है, वो क्या कर रहा है? रामिया क्या कर रही है? अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए डूइंग सम वर्क. दैट मीन्स रामिया इज योर entrepreneur. ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज. ये लेसन बहुत ही छोटा है तो ज्यादा इसमें कुछ है नहीं. ओके, यहाँ हमें 3 चीजें समझने की जरूरत है. दोज हु आर टेकिंग कॉमर्स इन 11th-12 दे विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस इन डिटेल. नंबर 1 इज योर व्हाट इज योर नीड्स, व्हाट आर वांट्स एंड व्हाट इज योर डिमांड. ठीक है, ये तीनों चीजें मार्केट से जुड़ी हुई हैं. नीड, वांट्स एंड डिमांड. ठीक है, नीड क्या होती है? नीड आर योर बेसिक थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर योर लिविंग. ठीक है, नीड्स क्या है आपकी? वॉट एवर थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर अवर डेली लाइफ, दैट इज योर नीड्स. एंड डिमांड्स आर व्हाट? आवर डिजायर्स. ठीक है, डिमांड्स क्या होंगी? आपकी डिजायर्स यानी आपकी इच्छा. So needs are your the basic necessity or the basic human requirements. ठीक है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? आपका नीड्स यानी बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट. ठीक है, दैट इज योर नीड. वांट्स क्या होंगे आपके? योर डिजायर्स, मतलब आपकी इच्छाएं. बेसिक जरूरत तो नहीं है बट आपकी इच्छा है कि मुझे ये चाहिए ही, मेरे पास एक लग्जरी कार होना चाहिए. दैट इज योर वांट्स. ठीक, नाउ व्हाट इज दैट डिमांड? ठीक है, तो अगर हम डिमांड की बात करें तो डिमांड, इफ यू हैव सफिशिएंट मनी देन यू कैन फुलफिल योर वांट्स. ठीक है, डिमांड कैसे रहेगी आपकी? डिमांड मीन्स योर जब हमारा
Needs, basic human requirement. Wants means your desires, and demand means your when you are going to fulfill that wants and needs. That is your market demand. ठीक है. So what do entrepreneurs do when they run their business? They fulfill customers' needs. वो customers की ज़रूरत को पूरा करते हैं. Use local materials. ठीक है. They use local material. उससे क्या होता है, आपका इकोनॉमी ग्रो होती है. ठीक है. लोकल मटेरियल मार्केट से खरीदा तो किसका बेनिफिट हुआ आपका. अभी अपना इंडिया में बोला गया था कि वोकल फॉर योर लोकल. सो यूज लोकल मटेरियल. देन हेल्प सोसाइटी. कैसे हेल्प सोसाइटी को करेंगे. एंटरप्रेन्योर्स हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप विद सोसाइटी. कैसे पॉजिटिव रिलेशनशिप. नंबर 1 इज योर दे मेक प्रॉफिट थ्रू एक्टिविटीज दैट बेनिफिट सोसाइटी. ठीक है. किस टाइप से सोसाइटी को हेल्प करेंगे. बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. सम एंटरप्रेन्योर्स वर्क टुवर्ड्स सेविंग एनवायरमेंट. सब कुछ एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं. तो वी कैन से entrepreneurs always help society. How they can help society. By generating employment, by generating the needs of your society. ठीक है. by purchasing the local material or by using the innovation and technology. Then what happened. Your society will change. Then infrastructure development, encourage skill development. ठीक है. सपोर्ट गवर्नमेंट टैक्सेस. जब एंटरप्रेन्योर बनेगा टैक्स देगा. तो इस तरीके से एंटरप्रेन्योर हेल्प सोसाइटी. ओके. देखो यहाँ लिखा भी हुआ है. क्रिएट जॉब्स मीन्स यूर जनरेटिंग जॉब्स. शेयरिंग द वेल्थ मीन्स डिवाइड ऑफ योर इनकम. लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. जब एज मोर एंटरप्रेन्योर्स सेल द सेम प्रोडक्ट. ठीक है. ये याद रखना. जब एक ही बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स सेम प्रोडक्ट को भेजते हैं तो प्राइस डिक्रीज होता है. ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है. ठीक है. तो यहाँ देखो. एज मोर entrepreneur sells the same product, the price of the product goes down. For example, when more mobile phones were getting sold in India, the cost of phone become lesser. ठीक. फिर यहाँ पर एक भारतीय ज्वेलरी क्वीन का एग्जाम्पल दिया हुआ है. क्वेश्चंस रिलेटेड. ये केस स्टडी के क्वेश्चन में आ सकता है. वन केस इज गिवन एंड द क्वेश्चंस आर गिवन बाय दिस. व्हाट डिमांड डिड भारती आइडेंटिफाई इन हर विलेज. क्या डिमांड थी उसके वहां विलेज में. The people in the village wanted jute. No, girls in this area like to wear earring. ये था आपका डिमांड. ठीक है. Then what is the local resource for Bharti used. jute. How is Bharti helping her village to grow. Both. Buying jute from local farmer by providing jobs to local women. ठीक है. How was she creating more job. By selling earrings, by buying the jute, by providing, yes, third one, by providing the jobs to local. So these are the answers based on the case study. Now in this, state whether the statements are true or false. So entrepreneurs can create jobs in the market. True. When many entrepreneurs sells mobile phone in the market, the price of the phone increase. No. Same product, many entrepreneurs, then price will decrease. क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है मार्केट में. Entrepreneurs identify the need in the market and build the product. देखो ये फर्स्ट वाले का ट्रू. सेकेंड इज योर फॉल्स. Entrepreneurs identify the need in the market and build the product or the service for it. Yes, true.
अब देखो ये सेशन 2 है, इसमें इम्पोर्टेंट है आपका क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर 4 हैं, ये हमें याद रखना है। नंबर 1 इज योर कॉन्फिडेंट, नंबर 2 इज योर कीप ट्राइंग न्यू आइडियाज, नंबर 3 इज योर पेशेंट एंड नंबर 4 इज योर क्रिएटिव एंड डिफरेंट सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम। देख लो यहाँ ध्यान से देखो बेटा, क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, क्वालिटीज में 4 क्वालिटीज हैं और ये 4 क्वालिटीज ही लिखना है, अपने मन से वहां लिखकर नहीं आना है। मार्किंग स्कीम में नहीं मिलेंगे आंसर्स, तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स। तो नंबर 1 इज, ध्यान रखो क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर में, नंबर 1 इज योर कॉन्फिडेंट, नंबर 2 इज योर ट्राइंग न्यू आइडियाज, नंबर 3 इज योर पेशेंट। ठीक है, पेशेंट, पेशेंट यानी यहाँ मरीज नहीं है, पेशेंस वाला पेशेंट है। ठीक है, स्पेलिंग सेम है, PATIENT। क्रिएटिव एंड डिफरेंट सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम। ठीक है, क्रिएटिव है, इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं एंड डिफरेंट सॉल्यूशंस फॉर द सेम प्रॉब्लम। सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। ये 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, दिस क्वेश्चन विल कम फॉर योर 2 मार्क्स क्वेश्चन। 2 मार्क्स में आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ये 4 क्वालिटीज लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब इसको आप 4-5 बार लिख कर देखेंगे तभी आप उसको याद कर पाएंगे। सेम क्वालिटीज आर गिवन बाय योर स्टोरी ऑफ जफर। I made a mistake, but it was my decision, so I take responsibility for it. I take the decision after thinking about whether they are good or bad for my business. ठीक है, I am working so many hours, Sundays also, but I work hard because it is good for my company. ठीक है, I do not give up. Sometimes so many problems are there. ठीक है, but we have to think positive and never give up. So these are also the qualities. Okay. अब क्वालिटीज के बाद आएगा इसमें फंक्शन। नेक्स्ट पेज पर यहाँ एक्टिविटी दी हुई है, इसका कोई काम नहीं है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, यहाँ भी कोई ऐसा काम नहीं दिया हुआ है। हाँ, यस, दिस पेज इज इम्पोर्टेंट, पेज नंबर 93। ठीक है, यहाँ पर आप देखो 6 फंक्शंस दिए हुए हैं। 6 फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, क्या क्या 6 फंक्शंस हैं आपके? मेकिंग डिसीजंस, मैनेजिंग बिजनेस, डिवाइड इनकम, taking risk, create a new method or idea or your product. So these are the functions of your entrepreneur. Number 1, making decision. Number 2 is your managing business. Number 3, dividing income. Number 4, taking risk. Number 5, create new method, ideas or product. Now here are some stories of some entrepreneurs. Tick the option for the quality they are showing. Quality बताना है हमें। ठीक है, Ravi's customers come to his store and start shouting at him. He does not get angry. He listens to what his customer is saying. He is, क्या है वो? Patient. ठीक है, Sushila decides to sell her company tires in Sri Lanka. It does not sell and she has a loss.
She apologized to the people who work for her. She says she will plan better next time. She क्या किया उसने? Take responsibilities of your mistakes. मिस्टेक तो हुई है तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ली. टिक द करेक्ट ऑप्शन दैट फंक्शन. फंक्शन की बात करें हम. अली हैज अ डायमंड फैक्ट्री. ही पेज हिज एम्प्लॉयज ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ. हाँ, ये जो फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ को हम सैलरी देते हैं, दैट कम्स अंडर योर मैनेजिंग बिजनेस. ठीक है, किसी की सैलरी रोकना नहीं चाहिए, टाइम पर ही देना चाहिए. मैरी बाइज बल्ब फॉर हर बिजनेस फ्रॉम नोएडा. She learns that bulbs are cheaper in Faridabad, so she decides to start buying bulbs from there. क्या किया उसने? Make decisions. ठीक है. रहनुमा has two people who work for her every day. She needs to spend 1 hour with them to learn about what they have done that day. ठीक है. क्या कर रही है वो? Manage the business. What do you think is the most important function of entrepreneur? Write your answer giving suitable example. अब इसमें आपको फंक्शन कितने बताए थे हमने आपको? 6 फंक्शंस. ठीक है, कौन कौन से 6 फंक्शंस है आपके? ये है 6 फंक्शंस. ठीक. मेकिंग डिसीजंस. अब यहीं से आप कोई भी एक फंक्शन उठाएंगे और उसी के एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, फंक्शन अगर हमने उठाया तो फर्स्ट यू राइट दिस इज योर फंक्शन लाइक मेकिंग डिसीजंस. अब वो सुशीला का ही एग्जाम्पल दे सकते हैं कि बल्ब जो श्रीलंका से खरीद रही थी उसमें आपका सस्ते थे, तो शी हैज डिसाइडेड टू परचेज इट फ्रॉम श्रीलंका. ठीक है, तो मेक डिसीजन अगर आप बता रहे हैं तो योर एग्जाम्पल शुड बी रिलेवेंट. डिवाइड इनकम बता रहे हैं, योर एग्जाम्पल शुड बी रिलेवेंट. ठीक है, टेकिंग रिस्क है तो आप किसी का भी एग्जाम्पल जब बताएंगे तो इट शुड बी रिलेवेंट विद दैट फंक्शन. ओके, नाउ द नेक्स्ट सेशन, दैट इज योर myths about your entrepreneurship. अब ये myths क्या होते हैं? myths are your misconceptions और your wrong belief. ठीक है, जो सही नहीं है बट अभी शुरू से ऐसा ही माना जा रहा है, तो that is known as your misconceptions और your wrong beliefs are your myths. तो 4 myths हैं. कौन कौन से हैं ये 4 myths? नेक्स्ट पेज पर हम देख लेते हैं, बस ये लास्ट सेशन है इसका. ओके, अब इसमें बेटा आपको ये स्टेटमेंट लर्न करना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा. मिसकंसेप्शन 1 या आपका मिथ 1. ठीक है, नाउ व्हाट इज दैट मिसकंसेप्शन? पहली लाइन वैसे ही स्टार्ट होगी, द मिसकंसेप्शन इज दैट. ये सेम रहने वाला है. नाउ मिसकंसेप्शन क्या है? एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक और स्पेशल. जरूरी नहीं है ऐसा कि हर एक आइडिया यूनिक ही होना चाहिए. इट कैन बी अ कॉमन आइडिया इन अ डिफरेंट वे. ठीक है, तो एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक और स्पेशल इज योर मिसकंसेप्शन. इट कैन बी योर सिंपल आइडिया इन अ डिफरेंट वे. ठीक है, डू द थिंग्स डिफरेंटली. अब इसके लिए आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, लाइक योर गणेश इज एन एंटरप्रेन्योर हु हैज स्टार्टेड
car rental business. He wanted to be different from other car rental businesses, so he thought a new idea of adding luxury cars like your Mercedes, BMW to his business. अब वही टैक्सी का ही बिजनेस कर रहा था, बट न्यू क्या लाया वो, मर्सिडीज, BMW. ऐसे ही एक और आइडिया में उन्होंने बताया है कि वो आपका न्यूज़पेपर रखने लगे टैक्सी में. ठीक है. नाउ द मिसकंसेप्शन 2. ठीक है, मिसकंसेप्शन 2. देखो लाइन स्टार्ट वहीं से हो रही. द मिसकंसेप्शन, अब क्या है मिसकंसेप्शन, इज दैट वी हैव it that a person needs a lot of money to start a business. ठीक है, ये मिसकंसेप्शन है. ये जरूरी है कि हमारे पास एक कैपिटल अमाउंट होना चाहिए टू स्टार्ट अ बिजनेस, बट ऐसा नहीं है कि हमारे पास हम करोड़पति होंगे तभी हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. तो अच्छा, इसमें एक ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है आपका, जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो अमाउंट रहता है, दैट अमाउंट इज नोन एज योर कैपिटल. ठीक है, व्हाट इज कैपिटल? The amount required to start a business is your capital. ठीक है. So बहुत ज्यादा पैसे की भी जरूरत नहीं होती है. तो ऐसा नहीं है कि न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे पैसा होना चाहिए. It can be start with your low investment also, like your there are different types of सर्विस बिजनेसेस. ठीक है, विच कैन बी स्टार्ट विथ योर लो इन्वेस्टमेंट. ठीक है. द नेक्स्ट वन, मिसकंसेप्शन 3. ठीक है. नाउ व्हाट इज दैट मिसकंसेप्शन? अ मिसकंसेप्शन क्या है? वी हैव इज the misconception we have is that only a person having big business is an entrepreneur. ठीक है, जरूरी नहीं है कि बहुत ही बड़ा बिजनेस है, एकदम अंबानी, टाटा, यही एंटरप्रेन्योर है और छोटे लोग एंटरप्रेन्योर नहीं है. नो, एनीवन हु इज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इज योर एंटरप्रेन्योर. ठीक है, वो खुद भी सेल्फ एम्प्लॉयड है और दूसरों के लिए भी जनरेट कर रहा है एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी ग्रो कर रहा है. ठीक है, इकोनॉमी को ग्रो कर रहा है, तो दैट पर्सन इज योर एंटरप्रेन्योर. सो दिस इज ऑल्सो मिसकंसेप्शन कि ओनली अ बिग बिजनेसेस इज एन एंटरप्रेन्योर. ठीक है. नेक्स्ट, द फोर्थ मिसकंसेप्शन. हाँ, अब बिजनेसमैन का बेटा एंटरप्रेन्योर का बेटा ही एंटरप्रेन्योर बन सकता है, एंटरप्रेन्योर की बेटी ही एंटरप्रेन्योर बन सकती है. दिस इज ऑल्सो मिसकंसेप्शन. तो मिसकंसेप्शन वी हैव इज दैट एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड. ठीक है, जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स को आप देखेंगे तो वो खुद ही खड़े हुए हैं. वो ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन के ही बेटे थे, बेटी थी तो वो बिजनेस पर्सन बन गए. ठीक है, दे हैव उन्होंने मेहनत करके अपने बिजनेस को बनाया है. सो दिस इज योर मिसकंसेप्शन. तो 4 मिसकंसेप्शन है. अब आप ध्यान रखो इस चीज को कि आपको क्या क्या करना है. देखो इस लेसन में है आपका 4 क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, 4 क्वालिटीज हैं, 6 फंक्शंस हैं, देन योर 4 मिसकंसेप्शंस हैं. ठीक है, 4 फंक्शंस हैं और 4 आपके मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शन. ओके, नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिसकंसेप्शन? मिसकंसेप्शन इज योर रॉन्ग बिलीफ. ठीक है, और मिथ एंड रियलिटी इज व्हाट? रियलिटी इज डिफरेंट. गिव एन एग्जांपल. तो इसके लिए आप कोई भी एग्जांपल अपने मन से लिख सकते हैं, बट उसमें प्रॉपर स्टोरी होना चाहिए. ठीक है, और यू कैन रीड द स्टोरीज एंड राइट एनी वन स्टोरी फ्रॉम देयर. लास्ट सेशन फॉर दिस इज योर एंटरप्रेन्योर एज ए कैरियर ऑप्शन. ठीक है, एंटरप्रेन्योर जो है वो कैरियर ऑप्शन की तरह हमें कैसे यूज करना है.
ठीक है, और हाउ टू स्टार्ट करियर इन योर एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय करियर? करियर क्या है? व्हाट इज दैट करियर? किसको हम करियर बोलेंगे? ठीक है, तो करियर इज व्हाट? करियर इज योर लाइन ऑफ वर्क, लाइन ऑफ वर्क दैट पर्सन टेक्स फॉर लाइफ। ठीक है, जब हम किसी भी काम को अपनी जीविका चलाने के लिए करते हैं, दैट इज नोन एज योर करियर। तो करियर इज अ लाइन ऑफ वर्क, ठीक है, लाइन ऑफ वर्क दैट पर्सन टेक्स फॉर लाइफ। ठीक है, now there are two types of persons. There are two types of persons. One is your self-employed, second is your wage employment. ठीक है, like suppose I'm talking about myself, तो I am your teacher, तो मैं क्या हो गई आपकी teacher at any school, so I am wage employment। ठीक है, इसी की जगह अगर कोई खुद अपना कोचिंग सेंटर चला रहा है, वो भी टीचर है, तो that is your self-employment। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, डॉक्टर हु वर्क्स फॉर द हॉस्पिटल इज योर वेज एम्प्लॉयड एंड डॉक्टर हु हैज ओन क्लिनिक इज योर सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, नाउ प्रोसेस फॉर द पर्सन हु बिकम्स एंटरप्रेन्योर, there is a process for your entrepreneurship। ठीक है, what is that process? Number 1 is your enter into the business or your start your business। क्या लिखा start your business में? ध्यान से देखो, when an entrepreneur is starting, they are just entering the market to do business। For example, Sanjana is starting a small grocery store in लोकलिटी, मतलब वहां पर एक उसने छोटी सी शॉप खोली और एंटर हुई वो एंटरप्रेन्योरशिप में। अब एंटर होने के बाद क्या करना पड़ता है हमें? वी हैव टू सर्वाइव। सो देयर आर मेनी एंटरप्रेन्योर्स इन द मार्केट, द एंटरप्रेन्योर्स हैज रिमेन कंपटीशन। मार्केट में कंपटीशन होता है, तो उस कंपटीशन में खरा उतरना, उस कंपटीशन में हमें स्टेबल रहना है। तो what we have to do? Sanjana's store survives competition and does well. She also expand the stores to 2 floor। उसने ग्रो कर लिया तब तक। ठीक है, सर्वाइव करने के लिए उसने कुछ काम किया वहां, तो दैट इज योर सर्वाइविंग। एंड नेक्स्ट इज योर ग्रो। क्या हुआ आपका? आफ्टर फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द ईयर संजना हैज ओपन्ड अ चेन ऑफ 4 more ग्रोसरी स्टोर्स इन द सेम सिटी। ठीक है, उसने एक चेन बना ली अपनी, तो उसने क्या किया? अपने बिजनेस को ग्रो किया। तो 3 स्टेप्स आर देयर, एंटर, सर्वाइव, ग्रो। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आता है क्वेश्चन। सो दिस इज योर। नाउ यहाँ देखो एक क्वेश्चन पूछा है आपका, डिफरेंस बिटवीन वेज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आपको क्या इंटरेस्टिंग लगता है? ओके, नाउ here write against the options if the business idea is in self employed or wage employed। ठीक, तो नंबर 1, कुकिंग इन अ रेस्टोरेंट। कुकिंग इन अ रेस्टोरेंट, तो आपको क्या हो गया? वेज एम्प्लॉयड। ठीक है, ओनिंग अ क्लोथिंग बिजनेस, दैट इज योर सेल्फ एम्प्लॉयड। हैविंग डोसा सेलिंग स्टॉल, वो भी क्या हुआ आपका? सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके, मैच द कॉलम, सुरभि ओपन्स 5 पेंटिंग स्टोर्स अक्रॉस द इंडिया, तो ये हो गया आपका ग्रो कर रहा है वो। देर आर मेनी कोचिंग क्लासेस इन द मुंबई, जैकब ओन्स वन ऑफ देम, ही इज स्टार्टिंग मॉर्निंग बैचेस। मॉर्निंग बैचेस भी स्टार्ट कर दिए उसने कंपटीशन के लिए, तो सर्वाइव कर रहा है। सलमा हैज स्टार्टेड न्यू हर क्लोथिंग लाइन ऑन द इंटरनेट, उसने सिर्फ स्टार्ट ही किया है, तो वो क्या हो गई आपकी? एंटर किया है। ठीक है, तो ये एंटर किया है, ये आपका सर्वाइव कर रहा है और ये ग्रो कर रहा है। ठीक, एंटर, सर्वाइव एंड योर ग्रो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर आप इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपकी 4 क्वालिटीज
ठीक है. Then your 6 functions, then your 4 myths, and 3 steps for your entrepreneur process cycle. ठीक है. ये इतनी चीजें आपको 4 चीजें करनी है इस लेसन में, एंड यू विल गेट 2 marks out of your 50. So all the best for your exams. If you like the video, please subscribe कर दीजिए उसको. Thank you.